Jazzy Joe's Vinyl Adventures. Okay, give me a beat. Watch this. Hi everyone, welcome to this new web series and 8th episode of Jazzy Joe's Vinyl Adventures, the web series where I talk to various collectors, sellers and producers of vinyl records in India. In every episode, we feature different lovers and promoters of vinyl records along with my tips about collecting records. This time, we are talking to vinyl sellers in the city of Kolkata, the city which loves music and is the mother of vinyl in India, as this is the place that vinyl was produced by the company HMV. Ladies and gentlemen, I am happy to chat with these vinyl sellers about their love for vinyl and about their shops. Hi everyone, I'm on the way to Kolkata and early morning flight, so you can see it's quite dark outside. And let's see, we'll get to the airport, and the idea of taking an early morning flight is so that I can reach there by afternoon and meet all the people that I want to meet in the full day. So see you at the airport. Alright guys, so I reached the flight and I'll see you now in Kolkata. And as the plane takes off and I look down at Delhi, there's a lot of excitement in my mind as I am going to Kolkata, the city of records, and I am anticipating a lot of records. And we have reached Kolkata. Looking forward to a great day. Great thing about Kolkata is that vinyl in India originated here as HMV made them in this city, and I'm looking forward to finding a lot of vinyl, even though the shops might not be as huge as in other cities, but you can see a lot of records. Ladies and gentlemen, we are in Kolkata, the land of record, the land of vinyl. As you can see on the street, it's right here. Let's go inside. Right guys, we've reached Kolkata and we are in an area called Lenin Sarani, and this is Kamalaya Center, and this is where most of Calcutta vinyl sellers are. There are 3-4 of them here. So let's meet our first vinyl seller. His name is Murtaza. Follow me. So, ladies and gentlemen, we are at our first venue. I am talking to Murtaza Saab about the collection he has and about his favorite format. Does he like LPs, EPs or 78 RPM? Murtaza जी, नमस्कार. कैसे हैं आप? ठीक है सर. मैं देख रहा हूँ आपने इतने सारे रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं. मैं जानना चाह रहा था कि आप कब से सेल कर रहे हैं कलकत्ता में, कब से बेच रहे हैं रिकॉर्ड्स? ये लगभग 30-35 साल से मैं कर रहा हूँ. अच्छा, अरे क्या बात. और आपका फेवरेट फॉर्मेट कौन सा है, एलपी या ईपी? तो मैं देख रहा हूँ 78 आरपीएम रखे हैं. फेवरेट तो हम लोग का एलपी है. अच्छा. आर डी बर्मन, किशोर कुमार, हमारे यहाँ ज्यादातर यही चलता है. अच्छा जी, कलकत्ता में. अच्छा जी, आर डी किशोर बेस्ट. हाँ जी. नहीं, जो चलता है वो छोड़िए. आपका फेवरेट क्या है? हमारा भी फेवरेट वही आर डी किशोर. अच्छा, आर डी किशोर. एलपी या एलपी 78 आरपीएम? एलपी. अच्छा. क्या बात. और ये जो नए रिकॉर्ड बन रहे हैं उनके बारे में आपका क्या सोचना है? क्या साउंड उनकी इनके बराबर है? नहीं, नए रिकॉर्ड जो बन रहे हैं उनकी रिकॉर्डिंग सीडी के जैसा है. उसमें कुछ आदमी पसंद करते हैं, कुछ आदमी नहीं भी पसंद करते. अच्छा जी. लेकिन ये हमारा ओरिजिनल रिकॉर्ड अभी भी अच्छा मतलब साउंड देता है और आदमी पसंद करता है. हाँ जी. पुराने रिकॉर्ड. हाँ जी, क्या बात है. As you've heard from Murtaza ji, Kolkata loves R.D. Burman, and he says that they are big fans of R.D. Let's move on to our next venue. And now we are at the second venue of Lenin Sarani. Once again, a dear friend of mine and someone who has a shop here since a long time. I am talking about Sheikh Mukhtar. नमस्कार सर, कैसे हैं आप? ठीक है सर, ठीक ठाक.
सर आप ये बताइए कि आपकी दुकान कब से है? बहुत पुरानी दुकान है। हमारा दुकान ये 55 से 60 इयर्स ओल्ड दुकान है। हाँ जी। वेलिंगटन स्क्वायर पे है और नियर 157A विलन सर। हाँ जी, हाँ जी। और ये दुकान मेरी बहुत पुरानी है और सबसे पहली दुकान है लीलन सरन जो अच्छा। मेरे फादर चलाते। अच्छा। तो फादर के बाद तो अभी मैं चला रहा हूँ ये दुकान। हाँ जी। हमारा ये दुकान में आपको वैरायटीज, सब वैरायटीज रिकॉर्ड्स मिलेगी। हाँ जी। आपको पहले हिंदी का, हाँ मैं देख रहा था, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है। इंग्लिश के आपके पॉप, कंट्री, रॉक, जैज कुछ भी खोजिएगा सब मिलेगा। आप हिंदी की, इंडियन क्लासिकल, पुराना फिल्म, नया फिल्म, आदि वर्मन या कुछ भी हो, रफी साहब या लता जी की या मुकेश जी के, हर किस्म के रिकॉर्ड मिलते हैं। और मैं रिकॉर्ड के संग रिकॉर्ड प्लेयर भी बेचता हूँ और रिकॉर्ड प्लेयर रिपेयर भी करता हूँ। अरे क्या बात। अच्छा अच्छा। अगर कोई इंटरेस्टेड हो रिकॉर्ड प्लेयर बनाने के लिए तो मैं बनाता हूँ। अच्छा। मैं बनाता, मेरे आदमी है वो बना देते हैं। अच्छा। मैंने वर्क आदमी रखे हैं जो रिकॉर्ड्स, पर्टिकुलरली रिकॉर्ड्स प्लेयर, टर्नटेबल, एम्पलीफायर सब बनवा। क्या बात है, क्या बात है। तो आपके फादर ने भी चलाई, आपने भी चलाई, अगली जनरेशन भी आप सोचते हैं? अगली जनरेशन इसलिए नहीं क्योंकि सोच रहा हूँ पर वो डिसाइड होगी बाद में कैसा करूँ। अच्छा अच्छा। नहीं, आप क्या चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि, या आप चाहते हैं कि वो अपने मन के हिसाब से जहाँ वो काम करना चाहे वो करें? वो मन के हिसाब से। लेकिन अच्छा। मैं ये चाहता हूँ, बस मेरे ये रिकॉर्ड दुकान है और मैं ये चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा, ताकि आम पब्लिक में थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि वेलिंगटन में अभी भी रिकॉर्ड बिक रहे हैं। हाँ जी, हाँ। और रिकॉर्ड्स की जैसे कि वैसी दुकान अभी भी, काफी पहले तो 30-35 दुकान यहाँ थी, अभी मुश्किल से 2-3 दुकान है। अच्छा जी। वेलिंगटन स्क्वायर की, जहाँ पर लीलन सन है, मेरा दुकान। अच्छा, बहुत बढ़िया। और जो नए रिकॉर्ड्स अभी बन रहे हैं, कुछ कंपनीज बना रही हैं, उनके बारे में आपका क्या विचार है? सही है, गलत है? नहीं, साउंड अच्छा है, नहीं है? नया रिकॉर्ड बन रही है तो इससे तो मैं खुशी हूँ, इसलिए पब्लिक अभी इंटरेस्टेड हो रही है नया रिकॉर्ड भी खरीदने में। अच्छा। और मैं, और ज्यादातर तो हर चीज तो नया रिकॉर्ड्स पर मिलती रही है। आपको हर चीज जो होगा वो आपको पुराना रिकॉर्ड ही में सुनना पड़ेगा। अच्छा। और सेकेंड हैंड ही रिकॉर्ड लेके आपको खरीदना पड़ेगा, क्योंकि इतने रिकॉर्ड्स जो सिंगर्स ने बनाई है और अभी नया रिकॉर्ड्स बनाने में उतना तो अवेलेबल नहीं हो पाएगा। हाँ जी, हाँ जी। आप कुछ सेलेक्टेड रिकॉर्ड्स आप प्रिंट कर रहे हैं, जो कि देख रहे हैं डिमांड है, वो आप प्रेसिंग कर रहे हैं। पर आप अपना मन का सुनने के लिए आपको सेकेंड हैंड यूज्ड ही रिकॉर्ड आपको चलाना। हाँ जी। So you heard it from my friend. He is saying that yes, we are making new records in India, but they are selected, and the sound is not the same as it used to be with the old records, and the songs are limited. So if you really want to listen to great songs by singers like Mohammad Rafi, Kishore Kumar, songs of R.D. Burman Sahab, you will have to buy second-hand records also. And as you can see, they are very much available still in Kolkata, in Lenin Sarani. So let's move on to our next venue. And now we are at our next venue, and this is a wonderful place because anybody in Kolkata who loves vinyl knows this venue. I am talking about my dear friend मोहम्मद इलियास साहब। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं आप? बस मैं बहुत अच्छा हूँ। हाँ, बढ़िया बढ़िया। बढ़िया। As you can see, the shop is full of records. You know, amazing collection he has. इलियास साहब, कब से है आपकी दुकान? हमारी दुकान 1980 से है। 1980? 1980 से। अरे वाह, मतलब 40 साल से ज्यादा हो गए। 40 साल से ज्यादा हो गया। मैं जब 8 क्लास के बाद ही मैं इस लाइन में आ गया था। वो गाना वाना सुनने का शौक था, फिर उसके बाद कलेक्शन किया, कलेक्शन के बाद फिर मेरा रिकॉर्ड सेल का आ गया। अरे क्या बात, क्या बात। और क्या आपके अब्बा जी ने दुकान खोली थी? नहीं, दुकान मैं ही खोला था, लेकिन अच्छा। उससे पहले हमारे एक बड़े भाई थे, वो अच्छा, बड़े भाई किए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मतलब उन्होंने खोली, आपने चलाई, और क्या क्या आपकी अगली जनरेशन भी? मैं एक लड़के को लाया हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। चलो मेरे बाद कम से कम उसको संभाले। क्या बात है, क्या बात है। तो कलकत्ता में जो रिकॉर्ड के शौकीन है उनको आप निराश नहीं करेंगे? नहीं नहीं, निराश नहीं करेंगे। अरे क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया। और कितने रिकॉर्ड होंगे आपके पास? कम से कम 30,000 है, बंगला, हिंदी, इंग्लिश, 78 क्लासिकल सब मिला के। अच्छा, और बिकता क्या है ज्यादा? कलकत्ता में क्या ज्यादा बिकता है? बंगाली बिकते हैं? सभी बिकता है, मोटा मोटी लेवल है। हिंदी भी उतना ही बिकता है, बंगला भी उतना ही, क्लासिकल भी बिकता है। अच्छा अच्छा। और इंग्लिश रिकॉर्ड भी बिकते हैं? इंग्लिश भी बिकता है।
अरे क्या बात है. Right guys, here we are at our next venue. I am with my friend माशूक जमाल जी. नमस्कार जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ. बहुत बढ़िया. मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह जी. बहुत आपने अलग अलग यूनिक आइटम्स रखे हुए हैं. तो आपकी दुकान कब से आपने खोली है कलकत्ता में दुकान? मेरी दुकान कलकत्ता 1967 से है. अच्छा. मेरे फादर इसको चलाते थे. हाँ जी. आफ्टर 2000 मैंने इसको टेक ओवर किया है. अच्छा जी. अभी मैं चलाता हूँ. अच्छा अच्छा, क्या बात है. और कलकत्ता में आपके हिसाब से क्या ज्यादा बिकता है? कौन सा आर्टिस्ट? सभी बिकते हैं. इंडियन क्लासिकल बिकते हैं, बंगाली बिकते थे. हाँ जी. आर.डी. बर्मन, किशोर कुमार, हाँ जी, सभी मिक्स बिकते हैं. ऐसे. और कलकत्ता में ज्यादा बिकते हैं, इंडिया में ज्यादा बिकते हैं, दुनिया में भी बिकते हैं? कैसे बिकते हैं आपके? सब जगह एवरेज है अभी, क्योंकि बाजार खराब होने के वजह से. बट ठीक है सर. अच्छा. अच्छे बिकते हैं. अच्छा, विदेश में भी बिकते हैं. और सर, आपका क्या विचार है नए रिकॉर्ड्स के बारे में? जो नए रिकॉर्ड कंपनी बना रही है, उनका साउंड और पुराने रिकॉर्ड्स के साउंड में आपको कुछ फर्क लगता है? बहुत फर्क है सर. अगर म्यूजिक चाहता है इंसान तो उसको एनालॉग ही सुनना पड़ेगा. अच्छा. अभी जो नए बन रहे वो सारे डिजिटल थे. अगर डिजिटल में रिकॉर्ड में सुनूंगा उससे बेटर मैं सीडी में सुनूंगा ना. इतना पैसा मैं 2000 रुपये क्यों एक एमपी खरीदूंगा? हाँ जी. जो मुझे 100-200 रुपये में सीडी मिल जाएगी. हाँ जी. हाँ जी. म्यूजिक ऑलवेज एनालॉग में सुनना चाहिए. So you can see my friend Mashuk Jamal says that if you have to buy a record, try to buy an analog record, not a record that has been mastered on digital and put on the vinyl. You know, so that is wisdom in itself. Thank you, sir. Thank you so much. And now let's move on to our next venue. And now once again we are on the main road, and I am talking to Mohammad Iqbal ji. As you can see, he has records too. इकबाल साहब नमस्कार. कैसे हैं आप? अच्छा. आपका रिकॉर्ड्स का कब से आप सेल कर रहे हैं? कब से बेच रहे हैं? अच्छा, 1970 से. क्या बात है, क्या बात है. 50 साल से ज्यादा हो गए. वाह वाह वाह. हो गया. हाँ जी. रिकॉर्ड लेंगे. अच्छा अच्छा. रिकॉर्ड से मतलब हमारा परिवार चलता है. हमारा हाँ जी. नकली हुआ ऐसे से. हाँ जी. हाँ जी. एक रिकॉर्ड जिसका वैल्यूएशन था 50 रुपया. हाँ जी. इसका रिकॉर्ड का वैल्यूएशन किया 5000. हाँ जी. 2000, 3000, 3000, 10,000, हाँ जी. 10,000. हाँ जी. हाँ जी. हाँ जी. ये सबका आपका पड़ोसी एलपी. हाँ जी. क्या बात है, क्या बात है. और आगे भी आप चाहते हैं कि आपकी अगली जनरेशन जो आगे परिवार में आ रहे हैं वो भी ये काम करें संगीत का? ये हमारा दूसरा. अच्छा 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 अच्छा. क्या बात है. शुक्रिया जी, बहुत बढ़िया. थैंक यू. As you can see, you have a lot of passionate people, you know, who are selling records and who have English records, Bollywood records. And let's move to our next venue. And now we are at our next venue. And this venue is very, very special because they have been around since the early 1950s. Ladies and gentlemen, I would like to introduce you to my friend Danish Prince. Hi Danish ji. कैसे हैं आप? बस आपकी दुआ है. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. दानिश जी, आपका कलेक्शन देख के मैं तो बहुत ही इम्प्रेस्ड हूँ. आप मुझे ये बताइए, आपकी दुकान कब से शुरू हुई? मुझे जहाँ तक पापा ने कहा है कि 1952 से ये स्टार्ट हुई है दुकान. अच्छा. उससे पहले वो सुनते थे. अच्छा. गाने वगैरह 78 में सुना करते थे. हाँ जी. तो उनकी वजह से उनका शौक जगा और फिर वो कन्वर्ट हो गए रिकॉर्ड बेचने में और खरीदने में. अच्छा अच्छा. तो वो हिसाब से अपने पास 20-25 हजार से भी ज्यादा, ना जाने कितने हजार पीस रिकॉर्ड है अपने पास. ओह अच्छा अच्छा. तो मतलब जुनून से शुरू हुआ. हाँ, वो फिर बिजनेस बन गया. फिर उसको फिर हमने भी थोड़ा बहुत आगे बढ़ाया. हाँ जी. पहले हम लोगों का क्या था कि इंडियन क्लासिकल वगैरह और हिंदी मूवी बिकती थी. हाँ जी. उसके बाद फिर इंग्लिश आया. हाँ जी. इंग्लिश हम लोगों ने मैं देख रहा हूँ आपके पास माशाल्लाह बहुत अच्छा. जैज, रॉक, पॉप में सभी अपने पास मिल जाएंगे. हाँ जी. और बंगाली में भी रविंद्र संगीत हो गया. हाँ जी. मॉडर्न सॉन्ग हो गया, वो सभी है. हिंदी में आर.डी. किशोर सभी अपने पास है. अच्छा अच्छा. मैंने सब बोलने मतलब जो
अवेलेबल नहीं भी है, थोड़ा बहुत मिल जाएगा आपको। हाँ जी। हमारे पास। हाँ, मुझे पता चला कि न सिर्फ ये दुकान, आपके पास और भी दुकानें हैं। हाँ, हमारे यहाँ और पर गोडाउन है बहुत सारे। 3 दुकानें हैं, एक गोडाउन है, दो गोडाउन और हैं। हाँ जी, हाँ जी। बस माल बहुत है। अभी क्या है कि थोड़ा सा ये लॉकडाउन की वजह से प्रॉब्लम है, अच्छा। कस्टमर का कमिंग नहीं है। जो पुराने कस्टमर जो आते थे बाहर के, जापानीज हुए हैं, हाँ जी। फॉरेनर्स हुए हैं, हाँ जी। तो ये सब एक अच्छे कस्टमर में हुआ करते थे, जो अभी के टाइम में नहीं है। हाँ जी। तो इसके लिए ये स्टॉक और बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। अच्छा। चक्कर ये है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। और खरीदने के सिलसिला में आज भी जारी रखा हूँ, उसी तरह खरीदारी हो रही है अभी, हाँ जी, हाँ जी, उसी तरह। हाँ जी। अभी- और ज्यादातर कलकत्ता में लोग किस तरह के रिकॉर्ड खरीदते हैं? रविंद्र संगीत ज्यादा खरीदते हैं। अच्छा। जैसे हेमंत कुमार जी साहब हो गए, हाँ जी। सुंदर मुखर साहब जी हो गए, हाँ अच्छा मन्ना डे हो गया। हाँ जी, हाँ तो जी, ये सब के रिकॉर्ड काफी पॉपुलर है। रविंद्र संगीत, मॉडर्न सॉन्ग भी बिकता है, हाँ जी, हाँ जी। और यहाँ गजल का भी अच्छा रिवाज है। अच्छा, अच्छा। जी हाँ, बंगाली अच्छा। कस्टमर को इंडियन क्लासिकल, रविशंकर, विलायत खान साहब, अमीर खान साहब, अरे क्या बात। ये सबको भी काफी पसंद करते हैं। मतलब क्या कि बात। इसमें काफी इन्वॉल्व है। हाँ जी, हाँ तो जी। आज के टाइम में ये हुआ कि अच्छे सुनने वाले लोग जो हाँ हैं जी। आज भी थोड़ा बहुत टाइप में हैं, देखते हाँ हैं, जी। लेके जाते हैं। हाँ जी। जैसे आप आ गए दूर से हमारे उसी नहीं, तरह। हम तो आपका नाम और आपकी शान सुन के आए हैं। नाम कि भाई- क्या है, तो अल्लाह का करम है बस, हाँ जो जी। भी समझिए और क्या बताएं। हाँ जी, हाँ जी, कि भाई दानिश भाई से भी मिलते हैं, ताकि सबको पता चले, दुनिया को भी पता चले कि भाई इतना सब कुछ हो रहा है हिंदुस्तान में, इतने लोग प्रेमी हैं, इतने लोग कलेक्ट कर रहे हैं, इतने लोग नए रिकॉर्ड बना रहे हैं, इतने लोग बेच रहे हैं, दुकानें ले रखी हैं, आप बता रहे हैं गोदाम है। तो मैं यही चाहता हूँ कि लोगों को पता चले कि हिंदुस्तान में आज भी वाइनल जिंदा है। या सुनिए सर, ये 1952 से पापा की है। उसके बाद मेरा खुद 20-22 साल होने को इस लाइन में आ गया। हाँ जब जी। मैं 7 क्लास में पढ़ा करता था, हाँ तो जी। उसे मुझसे लगाव हो गया इस हाँ जी। मैंने ये म्यूजिक लाइन में। हाँ तो जी। फिर मैं शौकिया, मैं भी इसी तरह स्टार्ट किया। बिल्कुल। फिर पापा ने सब जो है वो भाग दौड़ दे दिया मेरे को। बिल्कुल। तो मैं भी काफी वक्त से हूँ यहाँ। हाँ जी। 20-25 साल। अच्छा दानिश भाई, ये तो दुकान का बात हुआ, बिल्कुल लेकिन बिना जुनून के कोई धंधा शुरू नहीं होता। बिल्कुल बात सही। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका फेवरेट क्या है? अगर आप पर्सनली आपका फेवरेट संगीत क्या है, डायरेक्टर कौन है, सिंगर कौन है, अगर आपका देखा जाए? मेरा अगर अभी में अगर देखा जाए तो म्यूजिक में तो आपको ए आर रहमान है। हाँ जी। पर टचिंग जो रखे हैं हम अब तक में आर डी बर्मन साहब को। अच्छा, अच्छा। ठीक है, किशोर के गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। क्या बात है दानिश भाई, मैं जहाँ जा रहा हूँ, जिसके पास जा रहा हूँ, कलकत्ता में आर डी बर्मन की धूम है। हाँ, धूम है, और उनके गाने भी सुनने में अच्छे लगते। छूता है, जैसे सनम तेरी कसम का गाना हो गया, हाँ जी। सितंबर का गाना हो गया। हाँ जी। तो ये सब बहुत अच्छा लगता है। और हमारे रफी साहब भी, उनका भी गाना काफी कुछ अच्छा है। जो कि क्या है ना कि रफी साहब का जो यहाँ पे हम लोग को कम मिलता है। हाँ जी। तो किशोर के गाने, आरडी के गाने यहाँ के लोग काफी खरीदे थे एक टाइम में। हाँ जी। तो हम लोग को आराम से मिल जाता है, तो सुनने मिलता है। हाँ जी। रफीक के गाने बहुत कम मिलते हैं, पर अच्छा, उनके भी मुझे पसंद है। अच्छा। ठीक है, मैं उसे एक सिंगर को और नहीं भूल पाता हूँ। हाँ जी। वो है मोहम्मद अजीज साहब, अच्छा, मोहम्मद अजीज, जो हमारे इलाके में रहा करते थे, हाँ मुन्ना जी। जिसके नाम थे। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ना, तो उनके भी हमको बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ जी। और मैं क्या बात, इंग्लिश लेकिन में- आर डी बर्मन हाँ, सुप्रीम है। आर डी बर्मन के तो जगह कोई ले नहीं सकता। हाँ जी। और उनके साथ जो अगर किशोर कुमार जी का साथ हो जाए हाँ जी, हाँ जी। तो फिर बात ही अलग है। So, I noticed, and I think most of you also should have noticed, that R.D. Burman rules in Kolkata. You know, I've asked this question from 3-4 of my friends, and everyone is saying that R.D. Burman is their favorite. And so is his viewpoint. My friend Danish Prince. Ladies and gentlemen, let's go now to the next venue. This time we are meeting another friend of mine. His name is MD Niaz Chotu from the shop Vibrations. नमस्कार छोटे जी, कैसे हैं आप? एकदम ठीक हूँ। गुड गुड गुड। अच्छा, एक चीज बताइए, आप कब से आप सेल कर रहे हैं रिकॉर्ड्स वाइनल कलकत्ता में? कब से सेल कर रहे हैं? नहीं, देखिए, हम तो बहुत ज्यादा साल नहीं हुआ, बट उससे पहले हमारे पापा बैठते थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो अराउंड लगभग 40 इयर्स तो होता होगा। अच्छा अच्छा, 40 साल से? हाँ, 40 साल से। अरे क्या बात है, क्या बात है। और आपने इन 40 सालों में कलकत्ता के जो लिसनर्स हैं, जो खरीदार हैं, उनका क्या देखा कि क्या उनको ज्यादा पसंद है? किस तरह का संगीत उनको ज्यादा पसंद है, या किस तरह के म्यूजिक डायरेक्टर, किस तरह के वो ज्यादा खरीदते हैं रिकॉर्ड्स? देखिए, हम लोग तो यहाँ पे जो बैठे हैं, हाँ जी, फ्री स्कूल स्ट्रीट में, हाँ जी,
तो यहाँ का माहौल क्या है कि ओवर टू ऑल टूरिस्ट इंक्लूड है। हाँ जी। तो जैसे टूरिस्ट लोग जो भी आते हैं तो मोस्टली बॉलीवुड साउंड ट्रैक के ऊपर में ज्यादा इंटरेस्ट होते हैं, इंडियन क्लासिकल के ऊपर में ज्यादा इंटरेस्ट होते हैं। हाँ जी। तो उन लोगों को ज्यादा देखा हूँ, जो भी टूरिस्ट लोग हैं बाहर से जो आते हैं वो लोग ज्यादा मोस्टली इंडियन म्यूजिक को ज्यादा ये करते हैं। हाँ जी। क्योंकि उन लोगों का वहाँ पे तो मिल ही जाता है। हाँ। जो भी इंटरनेशनल म्यूजिक उन लोगों का यहाँ अवेलेबल है। बिल्कुल। बट हम लोगों का जैसे जो भी लोकल है, हाँ जी, या आप नेशनल बोल लीजिए, हाँ जी, तो इन लोगों का सभी तरह का मोस्टली यह है। हाँ जी। बट हम लोगों का यहाँ पे ज्यादा जैसे आपका रॉक, जैज और आडी, और उसके बाद आपका हो गया किशोर। हाँ, मैं जिन से बात कर रहा हूँ हर कोई आडी का नाम ले रहा है। हाँ, तो आडी का और किशोर का ये सब तो हम लोगों का लोकल भी कस्टमर लोग मांगते हैं। यहाँ का जो बंगालीज लोग हैं उन लोगों को बहुत पसंद है। हाँ जी। और ऐसे ज्यादा अगर देखे तो खास के मेरा यहाँ पे जो है ज्यादा, हाँ जी, मेरे शॉप पे जितने भी कस्टमर्स आते हैं, हाँ जी, वो मोस्टली रॉक हुआ, जैज हुआ, ब्लूज हुआ, हाँ ये सब थोड़ा ज्यादा। हाँ, मैं देख रहा हूँ आपने अर्ली क्रीम, वुडस्टॉक, डीपेस्ट पर्पल, आपने अंग्रेजी एल्बम्स भी रखे हुए हैं। नहीं, मैं खुद भी सुनता हूँ। अच्छा अच्छा। मेरा भी अगर खुद का पसंद पूछिए तो मेरे को रॉक बहुत पसंद है, क्लासिक्स रॉक, थोड़ा बहुत ब्लूज, ये सब मेरे को भी पसंद है। हाँ जी। ब्लूज में मेरे को बहुत पसंद है बीबी किंग हो गया। अच्छा अच्छा। क्लासिक्स रॉक में आपका लेड जेप है, डीप पर्पल है, हैंड्रिक्स है, ये सब बहुत मजा आता है सुनने। और कितने रिकॉर्ड होंगे सर आपके पास? अभी तो फिलहाल तो हमारे पास ओवर टू ऑल सब कुछ मिला के अगर देखे तो मेरे पास 10,000 तो होगा। 10,000 LPs होंगे हमारे पास। क्या बात। और सीडीज के भी कलेक्शन है हमारे पास में। हाँ जी, हाँ जी। और काफी सारा मेरा जब पहले सेल करता था तो उस टाइम का मेरे पास में काफी सारा लाइव कॉन्सर्ट्स है। अच्छा। क्लासिक्स रॉक पे, जैज पे, ब्लूज पे, और अच्छा। काफी सेल भी करता था। क्या बट अब तो ऐसा डीवीडीज का जो है ना, माने मार्केट बहुत छोटा हो गया है, क्योंकि सब अभी डिजिटल हो गया तो उतना ये नहीं। बट ये एलपीज जो है हमेशा के लिए है और रहेगा भी। क्या बात है, ये जाने वाला नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। एकदम कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ। यस, यू कैन सी द कॉन्फिडेंस। छोटे भाई, थैंक यू सो मच। यू नो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। And now we are at the final place of my tour today. I say the final place because it's a very different place than the ones I've been to. It's very classy, it's more westernized, and there seems to be a different kind of passion in this place, as you can see behind me. So, and it all stems from the owner. A passionate guy, someone who collected vinyl for many, many years before he thought of making it into a business. Whether he becomes a billionaire or not, we will see. But right now, I want to introduce you to my friend Vasudev Jagwani. Hi Vasu, how are you? Good to see you. Good. Yeah. And I see the wonderful place that you have made here. Thank you. You know, it reminds me of my younger days when I used to dream of such a place. You know, such a den, a man's den. And I would like to ask you something very different. When did your personal passion begin? What was your experience with vinyl that started all this? Since my childhood. Okay. My father used to have the Telefunken gramophone. Oh, okay. At Wow. that time. Okay. With the Philips spool deck. Okay. So we were into this vinyl thing since childhood. Okay. Even my uncle had a garage that time. Oh, garage. Yeah. What, 301? Don't remember that. Okay. It was a changer. Okay. So one day it got damaged. Okay. So there were no spares available. Okay. So then my father, what he did, he bought one mechanic and he put a 7-inch HMV EI arm, used to call it that time. Yeah. And it used to take a stylus, that flip over stylus. Okay. 45 RPM and 78 RPM. Okay. So since then I was very into that vinyl thing. Okay. And we used to buy records during Pujo. Okay. Calcutta used to have Yes. Puja numbers and all those things. Yeah. Yeah. So right from that time we were into vinyls. Okay. And I see at your place that there is more Western catalog.
more English records than Bollywood. So is that also something from the younger days? Yeah, from the younger days. Your father was more into not my father. Jim Reeves or? No, not my father. We used to listen to Lunchtime Variety at that time. Okay. Sundays, Lunchtime Variety used to come at 1 o'clock. Okay. So that time we used to listen to all this Carl Douglas, Okay. Yeah. and all those numbers, ABBA, Yeah. Tony M. Yeah. They were hit that time. Yeah. So we got into that Okay. slowly. And why do you have an English catalog right now? Do you have more customers who are interested in Western music? Yeah, right. More customers inclined to Western music. Okay. And I am more passionate about sound also. Okay. And I these see. albums, they sound wonderful. These audiophile pressings. Yeah. Yeah. So it's mostly due to consumer demand. Okay. Fantastic. And I'm not too much, I don't know much about Hindi catalog. I see. Okay. No, there are a lot of Hindi sellers. I discovered earlier today. I met a lot of them. So I don't know which is a good pressing, which is. Yeah. Yeah, definitely. It's the amount they charge today. It's I don't know. Yeah. That takes me to a question that what do you think about today's vinyl releases in India? There are a lot of Bollywood releases. A couple of people are coming out with different catalogs. More of private artists and all that. But what do you think about those releases? Do you think they sound good enough to be on vinyl, or Yes, or is it a compromise? Good enough. There is a compromise, no doubt about it, because they don't have analog tapes with them right now. Yeah, definitely. So Yes. it's all digital transfer. Yeah. So that is one thing. Yeah. And second is the releases is pretty high. The price is pretty high. Okay. In fact, vinyl is still a niche product, and it will be a niche product Yeah. in future also. Yeah. So people with deep pocket will buy these albums. Yeah. That's also a reason for it remaining in a niche market rather than being in every house. Right. I think. Yeah. Now more people are into the digital sound rather than having their own vinyl collection or something like that. But as a businessman, where do you see the future of vinyl? Do you think more and more people will get around to buying it, especially the younger generation? I don't think so. It will be a niche product. Okay. Yeah. Younger generation in the sense college going kids, Yeah. they cannot afford 2,000, 2,500 rupees for one album. Okay. And you have only Hindi releases. You are not Yeah. having English releases. Yeah. English releases are also somewhere around 2,500 to 3,000 rupees. Starts from there. Yeah. So I don't think a lot of college kids can buy these things. Yeah. And then you have to get the turntable You have to get and the amplifier Right, that is and the speakers. So it's a whole It's setup. adding up the cost. Yeah, it adds up the cost. Yeah. But if you think it's not going to be very popular in the future, why are you selling them? What's the idea there? Is it passion? It's just passion. More than a business? Just a passion, yeah. Okay. Okay. And do you have customers only from Kolkata or India or the world? All over India. All over India. Okay. We don't export. Okay. We don't send outside India. Okay. But in India, we have from Delhi, Bangalore, Yeah. Noida, and all those NCR, Yeah. and Bombay also. Yeah. We What- get orders from them. We have an online store. Okay. Yeah. Okay. Wonderful. So there is a market according to you. Yeah, there is a market. Yeah. So we might see you as a billionaire soon. No. Okay. Not selling records. Okay. On that note, dear friends, yet to see whether he does become a billionaire or not. But this was my last venue for today, and I'm quite happy that I visited this place. And if you are in Calcutta and you are into Western music, you should check out this place too. And I hope you had a great time so far. Now we'll move on to my other segment, which is about giving tips to new vinyl collectors. So, see you there. Now it's time for the collector's tip of this episode for new vinyl collectors. This time I would like to talk about how to care for your vinyl.
This is very important part of maintaining your vinyl collection and keeping your records safe from moisture, dust and even termites. For moisture, you can keep moisture absorbers like this one. You can see this. You can keep this in your vinyl room or near your vinyl collection. These absorb the moisture in the air and collect it in the box and prevent damage caused by humidity to the records. They also prevent mold, fungus or musty smells. Also, termites get attracted to places which are wet, which have moisture, not dry areas. Dust is another problem which will cause crackles and even scratches when you play dusty vinyl. You can keep dust away with AC and regular cleaning and avoid playing vinyl on beaches too. Of course, the acid-free vinyl covers mentioned before in previous episodes will also help to maintain your collection so that you can enjoy your records each time you play them for years to come. And now we come to the end of this episode featuring Kolkata's vinyl sellers. Do tune into our next episode, which will once again be talking about vinyl and the people who love them in India. I hope all of you enjoyed this episode, and if you did, please subscribe to the channel and like and share the video so that others can appreciate vinyl too. You can also send any questions, suggestions or feedback through the email jazzyvinyl@yahoo.com. For my vinyl collector friends, happy collecting, and for everyone else watching, thank you and hope to see you in the next episode. Till then, take care and long live the vinyl. Watch this.